everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. So the chapter for today will be Motion and Measurement of Distances, Chapter 10 from Class 6 Science. In this chapter we are going to basically study about the types of motion. In addition to that, we are going to also study about the different types of measurement which can lead to measure distances, right? So in order to start the chapter, let us understand a short story of transport, that how the medium of transport has changed over the period of time. So long ago, when there was no as such transport discovered or made or whatsoever, then people used to walk on foot and they used to cover the distance by walking, right? After some time, the people understand that someone can use water as one of the medium to walk through or to cover the distances between the places. So that's when they tried to make a boat. अब जो बोट है उससे पहले what they did is कि इन्होंने एक सिंपल लॉग ले लिया वुड का, जो कि एक हॉलो कैविटी थी, और इस पे ये लोग अपना सामान रख के जाने लगे. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड adding more logs and they started making certain shape, and they started giving certain shape to the boats, and that's where the formation or the discovery of boat took place, and that is when we started using the water route as one of the medium. Now after that, discovery of wheel took place. Now discovery of wheel was the boom for the transportation field or the medium. So when the invention of wheel took place, it made a great change in the mode of transport. इसके बाद क्या है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था वो बहुत तरीके से इम्प्रूव हुआ था. ठीक है, तो 19th सेंचुरी तक, जब तक लोग क्या नाम है, जब पीपल सिर्फ डिपेंडेंट थे एनिमल्स पे, बोट पे या शिप पे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, तो जब व्हील का एसोसिएशन हो गया या इन्वेंशन हो गया, तो दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स, और सर्टन एनिमल्स जो काट को पुल करते थे. ठीक है, जैसे अपनी बैलगाड़ी होती है. उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ. स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद पीपल स्टार्टेड लेइंग डाउन रेल रोड्स. ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि हमारी ट्रेन्स का आविष्कार हुआ या इन्वेंशन हुआ, एंड दैट इज़ व्हेन द ट्रेन वर यूज्ड टू कैरी हैवी कैरेजेस और हैवी गुड्स. ठीक है, आफ्टर दैट also the people thought that why cannot air be used as a medium of transport, and that is when the discovery or the formation of the aeroplane took place. And aeroplanes के बाद then we had automobiles के बाद we had motorized boats and ships. 1900 में we had a development of aeroplanes which were later improved to carry passengers and goods. तो मतलब कि aeroplanes क्या है, development होने के बाद people understood कि ठीक है, aeroplanes can also be used to carry passengers as well from one place to the another. ठीक है, उसके बाद what we had is electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft. So this is how from certain centuries up till now we have seen so many changes in the transport. कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए, we need to understand that how far a place is. ठीक है, और how far a place is from the house or from the place where we are standing or from the place where we want to go to, right? तो इसके लिए we need to understand कि कोई भी जगह जो है हमारे यहाँ रहने के बाद यहाँ खड़े रहने से कितनी दूर है. ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह किस तरीके से मेजर करी जा सकती है और कितना डिस्टेंस आना चाहिए. इट्स लाइक कि अगर हमें मार्केट तक जाना है तो हमें पता है कि ओके ज़्यादा दूर नहीं है, तो या तो हम अपनी साइकिल से जा सकते हैं, हम पैदल जा सकते हैं. बट व्हाट अबाउट अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, तो विल वी बी गोइंग बाय फुट? नो. सो वी नीड टू टेक ईदर अ बस और अ ट्रेन, राइट? अब अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, देन वी कैन यूज़ एरोप्लेन और शिप, राइट? सो यही एक ज़रूरी बात है कि अगर हम डिस्टेंस की मेजरमेंट को समझ लें कि कौन कितनी जगह या चीज़ कितनी दूर है, तो हमें किस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है. उसके अलावा जो हमारा मेजरमेंट है वो सिर्फ डिस्टेंस सिर्फ वन प्लेस टू द अदर प्लेस में ही काम नहीं आता है. ये काम आता है हमारी डे टू डे एक्टिविटी में भी या डे टू डे लाइफ स्किल्स में भी, राइट?
जैसे अगर हमारा कोई कारपेंटर है तो उसको मेजरमेंट लेना ही होगा इन ऑर्डर टू मेक सर्टन पीसेस और सर्टन स्टफ, राइट। उसके अलावा जो अपना टेलर है उसको भी मेजरमेंट लेना होगा इन ऑर्डर टू मेक सूट्स और सलवार और व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो इसी तरीके से डे टू डे लाइफ में हमें मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू measure the distances depending on what we are actually measuring. So in the next topic we are going to study about certain type of measurements we can take into account in order to measure certain things. One of the easiest way to measure anything can be that we can use a hand span, ठीक है। अब हैंड स्पैन जो होता है वो ये होता है कि हम अपने हाथों को स्ट्रेच करके यहाँ से थंब से लास्ट फिंगर तक का डिस्टेंस को हम, ठीक है, मेजर कर ले। उसके बाद हम इसी को एक यूनिट बनाते हुए चलते हैं, मतलब कि इसी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी बना के चलते हुए हम इसको और फॉरवर्ड करेंगे और इससे ये पता चल जाएगा कि कितने हैंड स्पैन हुआ है। सपोज वी नीड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अ टेबल और हमें उसको इक्वली हाफ में डिवाइड करना है। तो अगर हमारा 4 हैंड स्पैन आया है तो वी नो कि इसका जो इक्वली जो डिवाइड होगा वो 2 हैंड स्पैन में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 हैंड स्पैन है, ये 2 हैंड स्पैन है, तो इतने में हमारा टेबल जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बट द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या ये हाथ का जो हमारा मेजरमेंट है क्या ये सारे बच्चों के लिए, क्या सारे इंसानों के लिए सेम होगा? किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा। तो इज़ इट अ राइट वे टू मेजर एनीथिंग, और इज़ इट अ वे जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं कि ओके दिस इज़ द ओनली मेथड जो हमें करेगा, या क्या हम बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस हैंड स्पैन के थ्रू कवर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हैंड स्पैन जो है वो एक रिलायबल मेथड नहीं है मेजरमेंट का, एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है मेजरमेंट का, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड वो होता है जो नो मैटर वॉट कि हम कहाँ जा रहे हैं या कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, उसके लिए वो इक्वल हमेशा ही रहेगा। इट विल बी स्टैंडर्ड एंड इट विल बी फिक्स्ड इन एवरी प्लेस यू विजिट और यू गो टू, ठीक है। अब जो हम कोई भी डिस्टेंस को जब हम नापते हैं तो वो 2 चीज़ों में एक्सप्रेस किया जाता है, एक किया जाता है नंबर में और एक किया जाता है यूनिट में, ठीक है। अब नंबर क्या हो गया, सपोज़ करो कि इसी को सपोज़ कर लो कि हमने जो टेबल को हमने जो मेजर किया था वो 4 हैंड स्पैन में आया है, तो 4 नंबर हो गया, हैंड स्पैन हमारी यूनिट हो गई। पर क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है तो हम इसको यूनिट नहीं मानते हैं। आपने सुना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हमें 4 किलोमीटर्स का रास्ता तय करना पड़ा। तो 4 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट विच इज़ एक्चुअली यूज्ड टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट। एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, या तो अपना फुट का लेंथ यूज़ करते थे, ठीक है, या विड्थ की फिंगर की विड्थ यूज़ करते थे, या फिर स्टेप से डिस्टेंसेस काउंट करते थे, और इस तरीके से अपने इन्होंने मेजरमेंट की यूनिट बना ली थी। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखा जाता है कि उनका जो भी कोई मेथड रहा होगा मेजरमेंट का वो इतना ज़्यादा परफेक्ट रहा होगा, क्योंकि जो भी एग्जैक्युएशंस होती हैं वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस देखी जाती हैं, ठीक है। अब हमारा एक क्यूबिट होता है, जैसे हमने एक हैंड स्पैन पढ़ा था वैसे क्यूबिट होता है। तो क्यूबिट का किस तरीके से हम समझेंगे कि जो हमारी एल्बो है, एल्बो से लेकर हमारी फिंगर टिप का जो डिस्टेंस है उसे क्यूबिट कहा जाता था, जो कि एंशियंट इजिप्ट में यूज़ होता था, ठीक है। उसके अलावा फुट यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब द ओनली प्रॉब्लम यूजिंग द बॉडी पार्ट्स एज द मीन्स ऑफ मेजरमेंट की हर इंसान का अलग अलग साइज़ होता है, एंड दैट इज़ वेयर वी आर स्टक दैट वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यार्ड जो है, यार्ड हम क्लोथ्स की वो मेजरमेंट के लिए यूज़ करने लगे। और अब इसका डिस्टेंस कैसे नापा जाएगा, आउटस्ट्रेच्ड आर्म से लेकर चिन तक, और ये रोमन यूज़ करते थे, ठीक है। इंडिया में भी क्या नाम है, 1 आंगुल या मुट्ठी के रूप में हम यूज़ करते हैं अपना मेजरमेंट, और आज तक भी ये चल रहा है। बट द ओनली थिंग जो हमने बात करी कि जो एवरी वंस बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइजेज एंड देयरफॉर वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब 1790s के दौरान फ्रेंच ने मेट्रिक सिस्टम को बनाया था, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट किया था, किसके लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। और इसीलिए सारे साइंटिस्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया था दिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और इसको हमने क्या बोला, नाउ दिस सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स कही गई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI यूनिट कहते हैं। नाउ SI यूनिट जो है, अब
कंप्राइज करती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज 4 और उसके साथ उसकी एसआई यूनिट सपोज किलोमीटर और मीटर। अब नीचे आपको एक छोटा सा वो दे रखा है, सी जो 1 मीटर है, एवरी मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स, मतलब कि 1 मीटर विल बी 100। नाउ 100 वॉट हमने बात करी है एसआई यूनिट में, देयर हैज़ टू बी अ एसआई यूनिट सिस्टम जो है हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट, उसमें एसआई यूनिट होनी बहुत ज़रूरी है। नाउ 1 मीटर इक्वल्स टू 100 इक्वल डिविजन्स ऑफ वॉट, सो इट इज़ सेंटीमीटर। नाउ 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो डिपेंड करता है कि कितने एरिया तक हम अपना डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हम इन एसआई यूनिट्स को यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हमें स्केल तक का वो नापना है तो वील यूज़ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस नापने हैं, सपोज करो एक जगह से दूसरी जगह तक, देन वील बी यूजिंग किलोमीटर्स। और अगर हमें बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नापना है, सपोज फ्रॉम अर्थ टू द स्टार और फ्रॉम सन एंड व्हाटसोएवर जो हमारा प्लानिटरी थिंग्स है, तो वहाँ पर वी यूज़ लाइट ईयर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ? देखो बेटा, अलग अलग चीज़ को मेजर करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। जैसे कि जो कोई टेलर होगा वो टेप का यूज़ करेगा, जबकि जो कोई क्लॉथ मर्चेंट होगा वो मीटर रॉड का यूज़ करेगा। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। अगर हमें पेड़ की गर्थ को नापना, मतलब अगर पेड़ के तने को अगर नापना है, तो ऑफकोर्स हम स्केल लेकर नहीं बैठेंगे, हम वहाँ पे टेप लेना ज़्यादा सही समझेंगे, क्योंकि वो मुड़ सकती है और वो एक करेक्ट मेजरमेंट दे सकती है, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़, सपोज करो एक बॉक्स है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो वहाँ पे वी विल यूज़ स्केल। और स्केल का भी एक करेक्ट तरीका होता है दैट कि जो उसका जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्केल का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, डब्बे के स्टार्टिंग पॉइंट पर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ना ऐसे टेढ़ा होना चाहिए ना वो ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए अपने उस पे रखे हुए पे, और इस वजह से एरर नहीं आएगा। अब जब हम मेजरमेंट लेंगे, सपोज करो उसकी जो मेजरमेंट है वो 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आई है, 7.5 सेंटीमीटर, तो उसको देखने के लिए हमें ना तो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जाकर देखना है या एक्सट्रीम राइट में जाकर देखना है। ऑल वी हैव टू फोकस इज टू स्टैंड इन बिटवीन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन सी इट एंड देन मेजर इट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे एरर के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर द लेंथ फॉर अ कर्व्ड लाइन। नाउ इन ऑर्डर टू मेजर अ कर्व लाइन, ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी यूजिंग अ स्केल जो कि एक स्टिफ होता है, वी नीड टू मेजर इट बाय अ स्ट्रिंग और अ थ्रेड। अब क्या होगा, सपोज वी आर गिवन अ ट्रेल की एक कर्व्ड पाथ है, इसको हमें मेजर करना है, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं थ्रेड को तो हम पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है। तो अगर पॉइंट के थ्रू हम उस थ्रेड को ले जाते हुए इसको पूरा मेजर कर लेंगे, नाउ वी विल पुट दिस थ्रेड इन फ्रंट ऑफ एनी स्केल और मीटर रॉड, और वहाँ पर हम थ्रेड को सीधा देखकर ये देख लेंगे कि कितना मेजर हो रहा है, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट वील बी नीडिंग बोथ ऑफ आवर हैंड्स, ताकि वो हर जगह पर थंब से प्रेस कर सके और कहीं भी कोई एरर के चांसेस ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की कैटेगराइजेशन कुछ अलग तरीके की होती है। सबसे पहला होगा हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बोले तो अगर मैं किसी भी चलती हुई चीज़ के बीच में सेंटर में एक पॉइंट कर दूं और मैं ये देखूं कि जो चीज़ जो भी घूम रही है वो एक कंप्लीट डिस्टेंस बनाते हुए और गोल आकार में ही घूम रही है, तो हम उसको सर्कुलर मोशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन जैसे कि ये है, ये गोल में घूमेगा, ठीक है। अब जो हमारे जो ब्लेड्स होते हैं फ़ैन के, वो भी सर्कुलर मोशन दिखाते हैं। जो छोटा पंखा होता है उनकी जो ब्लेड्स होते हैं वो भी सर्कुलर मोशन दिखाता है, ठीक है। जैसे ये हमारा जो ये विंड डायरेक्शन बताने वाला एक इक्विपमेंट है, तो ये भी गोल घूमेगा, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन दिखाएगा। जो घड़ी होती है, जो वॉच होती है, उसमें जो हमारे सेकेंड मिनट एंड आवर जो हमारे सुई होती है, नीडल होती है, डंडी होती है, वो क्या दिखाएंगे हमारे, वो भी सर्कुलर मोशन दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन बोले तो वो मोशन जहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन का मोशन देख पा रहे हैं, जैसे कि हाईवे पे गाड़ियाँ सीधी चलती हैं,
परेड में सोल्जर्स सीधे चलते हैं। अगर आपको बोल दिया गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधे चल के जाओ तो आप कौन सा मोशन फॉलो करोगे? आप रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है पीरियोडिक मोशन। नाउ पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जहाँ पर वी विल नोटिस कि कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो रही है, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब एक टाइम का एक रेगुलर इंटरवल है जहाँ पर ये चीज़ अपने आप में रिपीट हो रही है। जैसे अगर कोई बच्चा झूले पे झूल रहा है तो अगर उसने यहाँ से शुरू किया था तो वो वापस जाएगा, वो सेंटर पॉइंट पर आएगा और फिर वो यहाँ आएगा। तो यहाँ ये जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होता है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम जो है उसका सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से वो इस तरफ घूमेगा, फिर इधर जाएगा और अगेन सेंटर पे आ जाएगा। तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। अगर मैं गिटार की किसी भी स्ट्रिंग को मतलब टच करके छोड़ दूँ या पुल करके छोड़ दूँ तो वो भी पीरियोडिक मोशन ही शो करेगा। सो इन ऑल पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्ट जो है वो रिपीट करता है अपने मोशन को इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अब कई बार क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही टाइप का मोशन शो कर रहा होगा। देयर आर चांसेस दैट सर्टन ऑब्जेक्ट्स माइट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोशन। लाइक अगर हमारी कोई बॉल है, उसको मैंने घुमाकर ग्राउंड पे छोड़ दिया तो हम ये देखेंगे कि एक तो बॉल जो है वो सीधी जा रही है तो क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरा वो अपने आप में घूमती हुई जा रही है तो वो हमारा रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, रोटेशनल मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस है। रोटेशनल में ऑब्जेक्ट खुद पूरा घूमता है, सर्कुलर में एक पॉइंट के अराउंड घूमता है। ठीक है, अब वैसे ही जैसे हमारी बटरफ्लाई है, तो ठीक है, जो बटरफ्लाई है जब वो सीधी चल रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, पर अगर हम ध्यान देंगे कि उसके जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो अप एंड डाउन हो रहे हैं तो वो हमारे पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो जो पानी की बाल्टी है वो किस में जा रही है? हमारी रेक्टिलिनियर मोशन में। और जो हमारा यहाँ पे जो व्हील है जो यूज्ड है वो किस में जा रहा है? वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस यूज़ हुए हैं। जैसे हम सिलाई मशीन, जो सुइंग मशीन है, जब हम उसका यूज़ करते हैं तो जो नीडल है वो पीरियोडिक मोशन दिखाती है क्योंकि वो तुरंत अप डाउन करती है, और जो उसका व्हील है जो हेल्प कर रहा है उसको करने में वो हमारा सर्कुलर मोशन दिखाता है। ठीक है, तो here we have discussed certain type of motions, and this is how the chapter ends, by learning how to measure certain things, by understanding the SI units, and finally the types of motion. So I really hope आपको chapter समझ में आया होगा. Thank you so much for watching this video.